Hello everyone, welcome to NK Law classes in the series of the lecture interpretation of statute. Last time we had started with external aids and today is the second and the last lecture for external aids. This is for Mumbai University's LLB Sem 5 and BLS Sem 9 curriculum by Professor Kejal Vakharia. So guys, total there are 9 external aids. Dictionaries, translations, debates, inquiry commission report, law commission report, art works preparation, textbooks, contemporary exposition, statutes and pari materia. So in the last lecture, we have covered the 5 on the left hand side. In today's lecture, we are going to cover the 4 left in the right hand side, which are art works preparation, textbooks, contemporary exposition and statutes and pari materia. So we will see one by one these. So here we come, art works preparation. So there are 3 sides of this thing. One is surrounding circumstances, second is the state of the law, and third is parliamentary history. So if you want to understand this aid, you have to focus on these 3 points. If you can see any statute or any situation from these 3 angles, then only you will be able to understand this aid. All these 3 taken together for the interpretation, मतलब कोर्ट को कभी कुछ ऐसी चीज को इंटरप्रेट करना है जिसमें कोर्ट को ये तीनों चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा. It is known as art works preparation. Okay. So it is used for what purpose? To find out the intention of the legislature. Intention of the legislature, how to find it out? The state of the law and judicial decisions made prior to the passing of the law and the manner in which they are considered at the time of passing of the law are to be taken into consideration. अभी कभी कभार ऐसे होता है कि court while giving the decision there is ambiguity and all while interpreting. तो court wants to know the intention of the legislature. तो court वो कैसे करेगी? लेजिस्लेचर का इंटेंशन कोर्ट कैसे देगी? कैसे कोर्ट चेक करेगी? तो इसके लिए कोर्ट क्या करेगी? इंटेंशन क्या था लेजिस्लेचर का, मतलब हाउ टू फाइंड आउट. इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज पढ़ के तो समझ में नहीं आ रहा है. सो द स्टेट ऑफ लॉ एंड जुडिशियल डिसीजन मेड प्रायर टू द पासिंग ऑफ द लॉ. पर्टिकुलर कोई लॉ है वो पास हुआ, उसके पहले लॉ कौन से स्टेट में था, मतलब व्हाट वाज द लॉ बिफोर दिस, एंड जुडिशियल डिसीजन कोर्ट ने क्या क्या दिए थे बेस्ड ऑन द ओल्ड एक्ट. या तो ये मानो कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई एक्ट ही नहीं है तो कोर्ट कैसे डिसीजन देगी. और फिर जब नया एक्ट पास हुआ, जो एक्ट में एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, जब वो एक्ट पास हुआ तो फिर what all things were considered by the legislature at the time of passing a particular law. ये सब चीजों को कंसिडर करना है. So that is first thing. We'll go for the second thing. To determine prior law and the intention of the legislature. So court can take the judicial notice of the evidence showing the surrounding circumstances and its historical investigations into the considerations. पर्टिकुलर एक्ट मानो के एग्जिस्टेंस में नहीं था, पर्टिकुलर प्रोविजन एग्जिस्टेंस में नहीं था, तभी सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या थे, एंड कोर्ट में डू द हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंसीडरेशन. मतलब क्यों ऐसा क्लॉज डाला गया था. हाइपोथेटिकली आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द कंपनीज एक्ट, कॉमन सील. आज के डेट में जब हम लोग पूरा डिजिटलाइजेशन के एरा में चले गए हैं, सो यूज ऑफ द कॉमन सील मे सीम वेरी आउटडेटेड. कोर्ट को पर्टिकुलर डिसीजन देना है कि कॉमन सील का यूज होना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. तो कोर्ट विल सी द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एट दैट टाइम. क्यों ये क्लॉज डाला गया? या तो यू टेक एग्जांपल ऑफ एडल्ट्री, यू टेक एग्जांपल ऑफ सेक्शन 377 एलजीबीटीक्यू. तो कोर्ट को जब ये हिस्टोरिकल डिसीजंस देने थे तो कोर्ट ने क्या किया था? सराउंडिंग सर्कमस्टेंस जब 1860 में आईपीसी पास हुआ तभी के क्या थे, कोर्ट ने वो सब कंसीडर किया था.
कि मतलब क्यों ऐसे क्लॉजेस डाले गए थे जो आज के डेट में एब्सोल्युटली रिडंडेंट है, आउट ऑफ डेट है, बट मे बी 1860 के जमाने के अकॉर्डिंगली दोस क्लॉजेस वर एब्सोल्युटली एप्ट एंड परफेक्ट. The next point court will consider is if the legislature has assumed the state of law which was already existing erroneously, such error has no effect and does not become an act. अभी मानो कि जब एक्ट पास हुआ तो कोई पर्टिकुलर चीज को गलती से लेजिस्लेचर ने ले लिया था, मतलब लेजिस्लेचर ने कोई चीज को एरनियसली एक्सेप्ट किया था, अज्यूम किया था, सो फिर वो एरर को कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा. दैट एरर कैन नॉट बिकम एन एक्ट. जिसका लाइव एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ऑफ कोर्स आफ्टर 150 इयर्स, मोर देन दैट, एडल्ट्री 497 जो था सेक्शन आईपीसी में से हट गया है, एंड 377 इफ इट इज कॉन्सेंशुअल मतलब कंसेंट के साथ है, सेम सेक्स रिलेशनशिप, नो लॉन्गर इट इज एन ऑफेंस. तो जो एरर थी उसको अभी रिमूव कर दी गई है. नाउ टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिल्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द सेलेक्ट कमिटी, इन अ वे इट इज वेरी वीक. सो कैसे बताए, बिल्स रिपोर्ट्स जिसके बेसिस के ऊपर नया एक्ट बना है उसका कुछ मीनिंग फाइंड आउट करना है. तो कभी कभार मतलब बिल जब पास हुआ तो सर्कमस्टेंसेस क्या थे, बिल में क्या डिस्कशन हुआ था, कोई लॉ कमीशन रिपोर्ट, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट वगैरह, तो कोई कमिटी बैठी उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लॉ बना. तो कमिटी ने क्या सोचा था, रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था, ऑल दैट ऑल मे बी कंसीडर्ड. इन दैट सेंस तो ये थोड़ा एड वीक हो जाएगा, क्योंकि कमिटी, कमीशन, इंक्वायरी रिपोर्ट से वो कुछ भी बोलेंगे, eventually court has to see what is there in black and white in the final statute. So policy matters cannot limit the plain words of the statutes. अभी जब भी नया एक्ट बनता है तो वो एक्ट के रिलेटेड जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उनकी टिपिकली कमिटी बनती है. कमिटी बहुत सारे सजेशंस देती है, करती है, वो सब एक पॉलिसी मैटर हो जाती है. फाइनली यू हैव टू कंसीडर ब्लैक एंड व्हाइट में क्या लिख के आया. फॉर एग्जांपल न्यू कंपनीज एक्ट में CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा नया कॉन्सेप्ट ही आया है. ऑफ कोर्स कोई कमिटी बैठी थी जिसने ये सजेशन दिया है, कॉर्पोरेट शुड अंडरटेक, दे शुड अज्यूम सम काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अकेली गवर्नमेंट कितना करेगी, नो प्रॉब्लम, फाइन. बट अभी while interpreting, court has to see only what is written under section 135 of Companies Act and schedule 7 which is dealing with the CSR. वो कमिटी के रिपोर्ट में क्या आया था अबाउट CSR, that is not much important. Understood? And the last one, to determine the state of law, reports of committees act as a very good assistance. स्टेट ऑफ लॉ की लॉ बना क्यों, उसके लिए कोई कमिटी का कुछ रिपोर्ट है, दैट इज हेल्पफुल. हाँ, तो कोर्ट को इंटेंशन समझेगा कि पर्टिकुलर चीज एक्ट के अंदर क्यों आई है, पर्टिकुलर चीज पुराने एक्ट से डिफर क्यों कर रही है, व्हाट हैज बीन मॉडिफाइड एंड ऑल दैट. उसके लिए कमिटी के रिपोर्ट्स आर यूजफुल. The object of the legislation can be determined by resorting to the parliamentary history. Parliamentary history आप लोग ने बार बार पढ़ा है, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले केस है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स, डिस्कशन वगैरह, काफी कुछ चीजें कोर्ट अभी भी यूज करता है एज ए एड. सो वो पर्टिकुलर चीज पास करने के टाइम पे, पर्टिकुलर लॉ पास करने के टाइम पे पार्लियामेंट का इंटेंशन क्या था, वो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री से पता चल जाता है. This history is used for interpretation of the statutes. Yes. हिस्ट्री से पता चलेगा ना इंटेंशन क्या था, इंटेंशन पे से कोर्ट कैन अराइव एट द करेक्ट मीनिंग, करेक्ट इंटरप्रिटेशन. Surrounding circumstances and the necessity that led to the enactment can be ascertained from the parliament proceeding. अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए क्यों रिजर्वेशन रखा है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री से पता चलेगा कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ SC एंड ST एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन इंडिया. और फिर ओबीसी का जो हुआ, यू पीपल हैव स्टडीड दैट केस लॉ इनफ नंबर ऑफ टाइम्स. इंदिरा शाहनी वाला केस लॉ है पूरा. साचर कमेटी का, सॉरी मंडल कमेटी का जो रिपोर्ट आया 1970 टाइम में, मोरारजी देसाई ने पूरा एक कमीशन बिठाया था जिसने पूरा रिपोर्ट बनाया था ओबीसी के स्टेटस के ऊपर. 89 में ऑल ऑफ अ सडन बीपीसी ने उसको एप्लीकेबल करा दिया एंड ऑल दैट, यू पीपल नो दैट. सो बेसिकली आपको जानना है ओबीसी के लिए क्यों रिजर्वेशन है, you will have to refer that report which will talk about the condition of OBC at that particular time जब ये पूरा सर्वे किया गया. So statements of objects and reasons are helpful in finding out the condition prevailing at the time of enactment of an act. So
बेसिक कोई भी पॉलिसी या तो रिपोर्ट वगैरह रहेगा वो पढ़ के आपको समझेगा व्हाट वाज द कंडीशन. If the words of statutes are clear, unambiguous, then this aid is not useful. Like any other internal aid or any other external aid, statutes black and white में लिखा हुआ absolutely clear है, कोई ambiguity नहीं है, कोई confusion नहीं है, then you don't need the help of any aid, anything. Directly statute पढ़ के interpretation दे दो. Case laws. Balchan Jain versus State of MP. This is a very interesting case law, which we'll discuss. So यहाँ पे the act concern was Defense and Internal Security of India Rules 1971, जिसमें rule number 184 was under question. If a person is apprehending arrest, person को लग रहा है कि rule number 184 के अंदर मेरा arrest हो सकता है, तो उस बंदे को as per section 438 of CRPC एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है. अभी आप लोग को सबको पता है सीआरपीसी के अंदर बेल वगैरह सब कुछ सीआरपीसी में आता है बिकॉज इट्स अ प्रोसीड्यूरल मैटर. पीनल लॉज कुछ भी हो सकता है. पीनल लॉज विल जस्ट से कि इसको भैया अगर इसने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया पर्सन को तो इसको आप अरेस्ट कर सकते हो. या तो वो भी बोलता है कि अगर कोई बंदा ऐसे ऑफेंसेस कर सकता है उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं. अभी तक उसने ऑफेंस किया नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही मे कमिट सम ऑफेंस. तो उसके लिए बेल वगैरह का प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया हुआ है. सो सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी वाज अंडर क्वेश्चन. अभी सुप्रीम कोर्ट कैसे जजमेंट देगी कि पर्टिकुलर ये जो डीसा रूल्स थे, डीसा रूल्स के अंदर सीआरपीसी के अंदर एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो सुप्रीम कोर्ट रिलाइड अपॉन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री. अभी कैसा था, जो पुराना वाला सीआरपीसी था 1898 का, आप लोग जो पढ़ रहे हो अभी दैट इज 1973 वाला. सो 1898 का जो सीआरपीसी था उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन ही नहीं. 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट ने सजेशन दिया था अबाउट द एंटीसिपेटरी बेल, और उसके पीछे का मकसद क्या था, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दैट. कि कभी कभार जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं ना, दोज आर पावरफुल इन्फ्लुएंशियल, सामने वाले पर्सन को, द पर्सन इज रिलेटिवली वीकर टू देम, उसको हरेस करने के लिए कोई भी फॉल्स या तो ट्रिपल कंप्लेंट लॉन्च कर देंगे तो उसका अरेस्ट इंश्योर करेंगे. सो पर्सन हु नोज अबाउट इट, अगर एंटीसिपेटरी बेल का ऑप्शन है उसके पास, he can be saved from being sent to imprisonment. और अपनी सोसाइटी में अभी भी पेनल्टी से ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्या होती है, इवन टू स्पेंड 1 hour इन दी जेल. सो वो चीजें ना हो, किसी अच्छे खासे रेप्यूटेड पर्सन को जेल में ना जाना पड़े, उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन डाला गया. एज पर द 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट सजेशन, सीआरपीसी अकॉर्डिंगली अमेंड हुआ और ये हुआ. सो इस केस में, हिस्टोरिकल केस में, सुप्रीम कोर्ट ने किसके ऊपर रिलाई किया, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के ऊपर, कि एंटीसिपेटरी बेल कौन से सर्कमस्टेंसेस में दिया जा सकता है. एंड देन कम्स अ वेरी फेमस केस केशवानंद बागची वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे आता ही है. All the 5 years or all the 3 years people have been studying this case law, historical case law in the history of India. So जब ये केस का डिसीजन हो रहा था, that time intention of the framers of constituent, basically constituent assembly का intention, their discussion and all was considered by the court. So constituent assembly debates can be helpful in ascertaining the intention behind enacting such provision was the thing. एक constituent assembly की debates discussions क्या हुए थे while giving interpretation of certain clauses of the constitution and while giving judgment of this case it was considered. So this comes under arguments preparation. So एक basic चीज कि एक हुआ था कि आर्टिकल 368 का क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है. अगर Constituent Assembly ever wanted कि Constitution कभी भी change ही नहीं होना चाहिए, then they wouldn't have put the procedure to amend the Constitution. If they have put the procedure, it means they are okay with the idea to amend the Constitution. तो वो टाइम पे Constituent Assembly के क्या discussions हुए थे, debates हुए थे, वो सब भी consider किया जाता है. So this was all about our drawbacks. Then comes the next external aid, number 7, textbooks. You people have been studying law from various textbooks like अवतार सिंह वगैरह आप लोग रेफर करते हो कंपनी के लिए, आईपीआर के लिए,
Ratanlal, Dheerajlal is there. Again, Ramaiah is there for Companies Act. ऐसे बहुत सारे, Mulla and Mulla is there. Fayaz is there. For various act like contract, IPC, labor. आप लोग ने different authors के books खरीदी है, study किया उसमें से. Even examination point of view से often you people refer Japala books and all. So these all are nothing but the textbooks. So large number of textbooks are available in the market on particular subject matter. आपको एक ही सब्जेक्ट है आईपीसी, उसके ऊपर 15-20 ऑथर की अलग अलग बुक्स मिल सकती है. इसी के लिए कोई भी अच्छे लॉयर की ऑफिस में आप जाओगे, कोई भी ऐसे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस में जाओगे, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस में ऑफ कोर्स देयर विल बी एक्ट्स लाइक फेमा, कंपनीज एक्ट एंड टैक्स वगैरह की डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी सब बुक्स रहेगी. लॉयर डिपेंड्स वो कौन से फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा है, भर भर के बुक्स रहती ही है. कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, गूगल, इंटरनेट, ये वो, अच्छे सीए, अच्छे सीएस और अच्छे लॉयर की ऑफिस में आपको हमेशा टेक्स्ट बुक्स मिलेगी. अभी कैसा है ना कि टेक्स्ट बुक के जो अंदर व्यूज लिखे हुए रहते हैं, दोज आर द रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल व्यूज ऑफ द ऑथर. नॉट नेसेसरी अगर आप पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक का कोई पॉइंट कोट करते हो कोर्ट के अंदर, कोर्ट हैज टू एक्सेप्ट दैट. कोर्ट्स पॉइंट may differ from the textbook author's point of view. So it's a discretion of the court whether it wants to accept that point of view or court wants to reject that. अभी कंपनीज एक्ट के लिए ना, सीएस को अगर आप कभी भी देखोगे, सो रामैया इज गॉड. इट्स लाइक अ बाइबल फॉर कंपनीज एक्ट, फॉर एनी सीएस. रामैया का सेट व्हेन आई वाज देयर, आज से 5-7 साल पहले, कंपनीज एक्ट की 3 इतने मोटे मोटे वॉल्यूम आते थे. रूल्स वगैरह की बुक्स अलग से. मेन एक्ट ही 3 पार्ट में डिवाइडेड होता था, जो इतनी मोटी बुक्स होती थी. 20,000 वाज द प्राइस. तो वो हम लोग रखते थे. वी ऑफन यूज्ड टू रेफर दैट लाइक दैट देयर वाज अ टेक्स्ट बुक ऑफ चंद्रात्रे. वो भी बहुत बड़ा वॉल्यूमिनस बुक था, बट एक्सेलेंट बुक, एक्सेलेंट. हम लोग बहुत सारे सीएलबी मैटर्स में, आरडी की मैटर्स में, या तो इंटरनल कोई पॉलिसी डिसीजन लेना होता था, वो बुक्स रेफर करते थे. बट नॉट नेसेसरी कि कोर्ट हमेशा वो बुक का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज कोर्ट्स ऑलवेज हैव द डिस्क्रिप्शन ना, कि जो प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर है उससे वो अलग जजमेंट दे सकती है. अपार्ट फ्रॉम दीज टेक्स्ट बुक्स लाइक मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ऑफन ऐसे, मतलब भगवद गीता है, लोकमान्य तिलक का लिखा हुआ गीता रहस्य है, ऐसी बहुत सारी चीज के बहुत सारे कोर्ट ने अपने जजमेंट में काफी टाइम यूज किए हुए हैं. While interpretation of the statute, कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने जाओगे तो कोर्ट हैज वेरी लिमिटेड यूटिलिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स. लॉयर्स विल रेफर दोज अ लॉट, क्योंकि उसमें से आपको केस लॉस वगैरह भी मिल जाता है. यूटिलिटी इज लिमिटेड डज नॉट मीन कि वो कभी यूज नहीं किया जाता है. डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट एंड डिपेंड्स अपॉन द मैटर. केस लॉस, बेसन वर्सेस डेविड. अभी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड सब्सटेंस वाज इन्वॉल्व्ड. सब्सटेंस क्या होता है, दैट वाज अंडर क्वेश्चन. So court discarded the discussion on the subject matter given in the 12th edition of the Sale of Food and Drugs written by some author called Bell. अभी सब्सटेंस के लिए सेल ऑफ फूड एंड ड्रग्स बुक था, किसी बेल करके ऑथर ने लिखा था. कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब उसने जो टेक्स्ट बुक में लिखा था अपनी, कोर्ट ने वो व्यू एक्सेप्ट नहीं किया. कोर्ट ने क्या ओपिनियन दिया, that if the court rightly thinks so, it would never rely on the statement made in the textbook, howsoever authoritative. टेक्स्ट बुक कितना भी ऑथोरिटेटिव रहेगा, कितने भी अच्छे बंदे ने लिखा रहेगा, कितना भी बड़ा ऑथर होने दो, नॉट नेसेसरी कि कोर्ट को वो एक्सेप्ट करना ही चाहिए. अगेन हियर कम्स केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. Large number of textbooks were quoted while disposing of this case by all the parties, but Supreme Court discarded them and held that the best way to interpret is by taking into consideration whole context of the issue before it. Particular point को ले लो पूरे issue में से, फिर वो पॉइंट के ऊपर किसी टेक्स्ट बुक को रेफर करो. कोर्ट ने बोला नहीं, वी हैव टू सी द होल इशू एज अ होल. पूरा एक करके देखना है. बहुत सारी टेक्स्ट बुक का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने ये वाले केस में रिजेक्ट कर दिया था. So there are equal instances where textbook was allowed by the court, textbook was not allowed by the court. Then comes again a very interesting one, contemporary expositio. It's one of the important aid as well.
इट्स बेसिकली ये जो दो वर्ड्स है, ये जो फ्रेज है, इट इज कमिंग फ्रॉम द होल मैगजीन कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिशन ए ऑप्टिमा ए एनवायरमेंट फोर्टिसिमा इन लेगे. अब इसका मीनिंग क्या होता है? लैटिन मैगजीन यू डोंट हैव टू बाय हार्ट. The best way to construe a document is to read it as it would have been read when made. आप कोई डॉक्यूमेंट अब भी पढ़ रहे हो, you don't have to read it in today's circumstances. आपको जाना पड़ेगा backdated में कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जब भी बना था, वो टाइम पे वो कैसे रीड किया जाता, वो टाइम पे उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता, then only you can come to the conclusion. Best example of this would be the use of common seal under the Companies Act. 2015 में 2020 में आप कॉमन सील पढ़ोगे, आपको लगेगा व्हाट स्टुपिडिटी, नॉट नीडेड एट ऑल. बट जब 1956 के एक्ट में आया, तो उसके पहले के 1913 वाले एक्ट से अगर ये चलते आ रहा है, सो दैट टाइम तो कंप्यूटर जैसी कोई चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी. पेन एंड पेपर वर आल्सो नॉट दैट इजीली अवेलेबल. प्रिंटेड बुक्स वर आल्सो नॉट दैट इजीली अवेलेबल जितनी आज के डेट में है. सो जो टेक्नोलॉजी प्रिंटर है, फोटोकॉपी मशीन है, ये है वो टाइम पे नहीं था इतना. 1913 में तो इनफैक्ट नहीं था, प्रिंटर एंड जेरोक्स का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था. तो वो टाइम पे कॉमन सील डिड हैव इंपॉर्टेंस एंड इट वाज रिक्वायर्ड. तो आप अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे नहीं समझेगा, यू हैव टू गो बैक. या तो जब इसमें डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट की बात आती है कंपनीज एक्ट में, सो you know skips about the hand delivery, courier, e-delivery etc. e-delivery मतलब डिलीवरी थ्रू ईमेल स्कैन करके भेज दो. अभी 1956 में कंप्यूटर ही नहीं था, मतलब कंप्यूटर का इन्वेंशन हो चुका था, बट दैट वाज इन द फॉरेन, इंडिया में आया नहीं था, एंड दैट वाज इन द वेरी वेरी प्राइमरी स्टेज. तो ई डॉक्यूमेंट, इंटरनेट, ईमेल वैसे तो कुछ कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं. तो वैसी चीजों को ऑफ कोर्स एक्ट में नहीं लिया जाएगा. सो जो मोड्स ऑफ डिलीवरी थे, यू विल फाइंड रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड एडी, स्पीड पोस्ट एंड ऑल दैट, एंड यू विल थिंक आज के डेट में कौन ऐसा यूज करता है, or why other options are not provided. So this was the reason. You can't interpret from the today's point of view. You have to go at the time when the act was passed. The usage or practices developed under the statute indicates the meaning assigned to its words by contemporary opinion. Contemporary मतलब prevailing at the time when the statute was formed. तभी usage practice क्या था, उसके accordingly acts बने हुए थे. The full explanation of the statute given by the contemporary authority is the best explanation and must not be discarded, even though it may not be in conformity with the ordinary and popular sense. Contemporary authority, वो टाइम की authority ने अगर कुछ particular चीज के ऊपर explanation दिया है, you have to stick to that. It's not in conformity with the ordinary and popular sense. Section 377. ऑल ऑफ अ सडन हम लोग को लगता है कि पिछले 10 साल में, 20 साल में 377 वाले केसेस इंडिया जैसी और रिलेटिवली रिचुअल बेस्ड एंड ऑर्थोडॉक्स कंट्री में भी सडनली राइज हो चुके हैं. तो कि क्यों ऐसा प्रोविजन है 377 का? इफ टू पार्टीज आर कंसेंटिंग, उन लोग को प्रॉब्लम नहीं है, व्हाई द गवर्नमेंट शुड हैव प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहां पर है? कोर्ट को क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? ऑफेंस क्यों होना चाहिए? सो यू हैव टू गो बैक. जो बना तभी की जो अथॉरिटी थी, उसके लिए अगर ये ऑफेंस था, वो टाइम की सिचुएशन को लेकर इट इज ऑफेंस. इट इज लाइक व्हाट, यू नो, फॉरेन में बहुत सारी जगह पे न्यूड बीचेस वगैरह का कॉन्सेप्ट रहता है, वेयर पीपल कैन एक्चुअली गो फुल्ली नेकेड. आज की डेट में इंडिया में ऐसे एक भी बीच बनाना, इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ द माइंड. हम लोग सोच ही नहीं सकते. मतलब अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाएगा. बट इफ वी थिंक आज से 50 साल बाद शायद इंडिया में भी ये चीज कॉमन हो जाएगी. इट विल नॉट बी दैट टैबू मैटर. तो मे बी 50 इयर्स के बाद वाली जो जनरेशन रहेगी, उन लोग को लगेगा अरे इन लोग ने क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं डाला था, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस. सो वी हैव टू सी जब एक्ट बना तभी के सिचुएशंस क्या थे. So it is used for interpreting ancient statutes and ambiguous language, wherein those language itself had different meanings. Actually, अगर आप देखोगे इंग्लैंड के तो जो लॉज है वो तो 400 साल से चले आ रहे हैं. लैंग्वेज भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदलती रहती है. अगर आपको देखना होता 1920s 1930s वो टाइम वाली कोई भी मूवीज वगैरह देखो, मतलब जिसमें वो टाइम दिखाया गया है वैसे आप लोग बोलोगे मैम 1920-30s में मूवीज कहाँ पे थे? हॉलीवुड में आ गई थी, बॉलीवुड में नहीं आई थी. बट वो टाइम के जो वर्ड्स फ्रेजेस यूज किए जाते हैं आज बिल्कुल भी नहीं यूज किए जाएंगे अगर वो टाइम का सिनेरियो किसी उसमें दिखाया गया है. और यू पीपल टेक द एग्जांपल ऑफ लेटेस्ट रामायण महाभारत, अभी वापस टू टेलीकास्ट किया गया था.
that language we are not using in our day-to-day language. So language के भी अपने meaning बदलते जाते हैं, words के भी meaning बदलते जाते हैं, और certain words we no longer use. वो सब समझने के लिए you have to go back to that era. So it is to be presumed that the person who enacted had the best knowledge of the circumstances when the act was enacted, and judges gave importance to those meanings of the words. The judges then were in much better position than the present-day judges. The reason being prevailing circumstances when the act was passed. मानो के 1960 में कोई पर्टिकुलर एक्ट पास हुआ, वो टाइम पे जो जजेस लोग थे, they were well aware of the situation, they were well aware of the intention of the legislature that time कि क्यों ये एक्ट पास करना पड़ा है. आज की डेट वाले जजेस शायद इसको इतना नहीं समझ पाएंगे जो 1960 वाले जजेस समझ पाते, क्योंकि they have seen that situation, they have gone through that. So we have to rely on their judgment कि क्यों ऐसा judgment दिया and उन्होंने particular interpretation क्यों दिया. So therefore, while considering the old enactment, very high regard must be given to the words by those judges. अगर वो टाइम का कोई जजमेंट है, वो जजमेंट को पढ़ना अच्छे से चाहिए, क्योंकि जज ने जो भी अपने जजमेंट में लिखा रहेगा, सोच समझ के लिखा रहेगा, सोच समझ के इन द सेंस अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन और कंडीशन एट दैट टाइम. अब इसमें क्रिटिसिज्म भी है. इंटरप्रिटेशन गिवन टू सिचुएशन इन ओल्डन टाइम्स डज नॉट स्टैंड इन द मॉडर्न सोसाइटी. देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस एंड द प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट. आप लोग ने बहुत बार ये लाइन पढ़ा है, लॉ हैज टू बी स्टेबल इन द शॉर्ट टर्म बट फ्लेक्सिबल इन द लॉन्ग टर्म. 150 साल पुराना लॉ कोई चीज बोल रहा है, बोलता है कि ऐसे ही करना है, वैसे नहीं करना है. सुसाइड इज स्टिल ऑफेंस. आज के डेट में हाउ रिलेवेंट इज दैट इन द मॉडर्न सोसाइटी? Should the attempt to suicide be considered as an offense, or it has to be considered like for the treatment, mental instability wala condition and all that? So आज के डेट में contemporary expositio in all the cases is not the good thing to use. As the time changes, even the laws have to change. इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने धड़ाधड़ ट्रिपल तलाक निकाल दिया, एडल्टरी निकाल दिया, 377 कंसेंट से है तो वो निकाल दिया, बहुत सारे चेंजेस किए. इट इज पॉसिबल इन नियर फ्यूचर मे बी 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड भी ऑफेंस में से निकल जाए. अंडरस्टूड? केस लॉस. राजाराम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. अभी ये भी बहुत मस्त केस है. Now, while interpreting Section 25 of the Indian Evidence Act, the court refused to apply the doctrine of contemporaneous expositio. Evidence Act was under consideration. Section 25 कोर्ट ने मना कर दिया, हम लोग contemporaneous exposition मतलब वो टाइम पे क्या सिचुएशन थी हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, because जो contemporaneous exposition का सबसे बड़ा victim is Evidence Act, which I'm going to study in the next semester. तब आप लोग को समझेगा why am I making this statement. The court contended that the act is not of recent origin. 1872 का act है ये, and by this time there is a development in the science and new revolutionary idea has begun to creep in the minds of the people. आप लोग बेसिक में बेसिक, आई एम नॉट आस्किंग एकदम हाई फाई लॉ सीरीज नेटफ्लिक्स वगैरह का देखो, इवन सूट भी मत देखो, सीधा साधा अपने इंडियन टेलीविजन चैनल पे आता ना क्राइम पेट्रोल के 2-3 एपिसोड देख लोगे तो आप लोग को समझेगा कि मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस है ना, कोई भी केसेस जो होता है पुलिस आजकल सॉल्व करती है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द मोबाइल फोन कॉल लोकेशन, या तो कॉल रिकॉर्डिंग, या तो किसको कॉल रिकॉर्ड्स कहाँ से पर्टिकुलर नंबर को बार बार कॉल गए. 80 to 90% केसेस आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन. कहीं ना कहीं अपना सबसे बड़ा ओसामा बिन लादेन, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, वो भी पकड़ा गया और मारा गया मोबाइल कॉल लोकेशन की वजह से. तो एविडेंस एक्ट अपना जो 1872 का है वो तो मोबाइल फोन के बारे में पूरा साइलेंट है. कुछ सेक्शन 66A B वगैरह वो कुछ डाल दिया रिगार्डिंग IT एक्ट के साथ, उसको कनेक्ट किया एविडेंस एक्ट को. तो दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इनसफिशिएंट. कोर्ट अपने अपने हिसाब से लेती है ये सब मोबाइल वाले एविडेंस को, बहुत टाइम लेती है, बहुत टाइम नहीं लेती है, ऑल दैट. सो बेसिकली कोर्ट ने बोला कि ये एक बहुत आउटडेटेड है, कॉन्टेम्परेरी एक्सपोजिशन के बेसिस पे हमें इसको इंटरप्रेट नहीं करना है. बहुत सारी फॉरेंसिक में साइंटिफिक रिवोल्यूशनरी टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड. वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दोस थिंग्स. The court, however, held that an excise officer is a police officer within the meaning of Section 25 of the Act. फिर उससे हाँ कि एक्साइज ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा था
ये पर्टिकुलर केस में कि कोई बंदा जा रहा था, उसके व्हीकल में ड्रग्स बहुत कुछ मिला था, एंड दैट पर्सन कन्फेस आल्सो टू द एक्साइज ऑफिसर जिसने उसकी गाड़ी को रोका था कि हाँ मेरी गाड़ी में है ड्रग्स के पैकेट, मुझे पता ये वो. देयर आर 5 other people with him. They all said नहीं. Initially everyone agreed, then everybody was like नहीं नहीं, we were not there only at that place and all that. plea of alibi जिसको बोलते हैं, उन लोग ने बोल दिया, वो प्ली हो गया हम लोग का knowledge. So basically those people were acquitted. 5 जन छूट गए. एक बंदे ने जिसने कन्फेस किया था वो आ गया, फंस गया. पुलिस ऑफिसर के सामने किया हुआ कन्फेशन इज नॉट अ गुड कन्फेशन. वो कन्फेशन एक्सेप्ट ही नहीं होता है कोर्ट में. तो एक्साइज ऑफिसर जो है वो पुलिस ऑफिसर है कि नहीं है, तो ये पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने बोल दिया कि यस, एक्साइज ऑफिसर इज अ पुलिस ऑफिसर. इसके लिए फिर रिलेट बैक किया था कि जब एक्ट बना तभी से एक्साइज ऑफिसर वाज कंसिडर्ड टू बी पुलिस ऑफिसर. नेक्स्ट इज R.S. Nayak versus A.R. Antule, who was our ex CM of Maharashtra. So this doctrine was again referred for section 21 of IPC. सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी आप लोग को सबको पता है, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है उसके लिए है. तो इसमें ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एमएलए जो अपना विधानसभा का जो मेंबर होता है, वेदर ही इज पब्लिक सर्वेंट और नॉट. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट. And now comes the last statutes in the pari materia. पारी मतलब सेम, मटेरिया मतलब मटेरियल. सिंपल मीनिंग इसका क्या होता है? The statutes which deal with the same subject matter or which form part of the same system are called statutes in pari materia. Now, when the statute is ambiguous, intention of the legislation may be determined from the statutes in pari materia. दो एक्ट सेम सब्जेक्ट मैटर में डील करते हैं, थोड़े बहुत ओवरलैपिंग भी आप बोल सकते हो, नॉट एग्जैक्टली ओवरलैपिंग, क्योंकि लेजिस्लेशन कभी भी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दो एक्ट बना के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. There is a difficulty in interpreting one act. That time you can take help of the other act, which is in pari materia, which is also dealing in the same subject. So to determine the meaning of an expression, reference can be made to a specific expression in an earlier statute dealing with the same subject matter. मैं इसमें आप लोग को एग्जांपल दे सकती हूँ. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 99 आया, उसके पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. तो मानो कि फेमा का कोई प्रोविजन में बहुत कंफ्यूजन है, समझ भी नहीं आ रही क्या बोलना चाहता है. फेरा का जो रिपील हो चुका है फेमा से, फेरा ऑल्सो डील्स विद द सेम सब्जेक्ट मैटर. फेरा का वो प्रोविजन एकदम क्लियर है. कोर्ट को अगर हेल्प लेना है तो कोर्ट कैन टेक हेल्प ऑफ दी फेरा. The different statutes in pari materia pass at different times, or those that have expired and each not referring to each other can be taken and construed together as one system and explanatory of each other. Contract Act आपका पास हुआ 1872 में. Contract Act पढ़ने के टाइम पे always you have to study Specific Relief Act, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो रेमेडीज वगैरह दी गई है are not that much sufficient compared to the Specific Relief Act. Specific Relief Act particularly specific relief के ही बारे में बोलता है जो कॉन्ट्रैक्ट में इतनी प्रॉपर्ली नहीं दिया गया है. वो कब पास हुआ? 1963 में. तो डिफरेंट टाइम पे ये दो एक्ट पास हुए हैं. दे आर इन पारी मटेरिया. सो टू इंटरप्रेट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, you can take help of the Specific Relief Act. When the meaning of expression is ambiguous, reference can be made to the earlier statutes. जैसे मैंने आप लोग को बोला फेमा में नहीं हो रहा है, फेरा से आप काम चला सकते हो. It's not enough that they deal with the same subject matter. सिर्फ दो एक्ट है, दो एक्ट एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर काम करते हैं, तो they don't become pari materia. POCSO is there, IPC is there, would deal with the offenses. Does not mean by default वो लोग pari materia बन चुके हैं. POCSO deals exclusively with the offense or abuse against the children. IPC is general for all. Not necessary POCSO का interpretation करने के लिए you always can take help of IPC. It's further not necessary that entire subject matter should be same. अगर entire subject matter same है, तो legislature क्यों इतना मेहनत करेगा दो एक पास करने का? Certain points may be same, not necessary all the points have to be same. If statutes in pari materia are read in the complementary manner to each other, then any apparent contradiction
between a series of statutes dealing with the same subject matter can be removed. If the pari materia वाले जो acts हैं, they are complementary to each other, तो फिर कोई भी apparent contradiction होगा between a series of statutes dealing in the same subject matter that can be removed. Complementary है मतलब they are going to help each other, तो फिर कोई भी contradiction किसी भी particular act में है that can be removed with the help of another. Contract and specific effect अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, वहां पे देखा जाएगा either which is the latest will of the legislature or which is making more sense. एक का contradiction दूसरे की help से remove आप कर सकते हो. Meaning of ambiguous expression in the earlier statute can be set right by the use of later statute as a parliamentary exposition. Earlier statute मतलब पता है ना legislature को पुराने एक्ट में ये डिफेक्ट्स रह गई थी या it is incomplete. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में इनफ नहीं बोला है, बेटर है हम लोग स्पेसिफिक डिफेक्ट बना के उसमें बोल दें. सो पार्लियामेंट को पता है ना कि जो एम्बिग्यूटी छूट गई है पहले वाले एक्ट में, पुराने एक्ट में, लेटर एक्ट पास करके उसको रिमूव करो. अनदर बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द हेल्दी कंपटीशन एनवायरनमेंट इन द कंट्री, उससे इतनी बैंड बजा दी थी कि बिजनेसमैन लोग बेचारे बिजनेस ही नहीं कर पाते. थोड़ा प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फंस गया, लाइसेंस राज ये वो बहुत कुछ था. एंड ये एक्ट का एमआरटीपी एक्ट का पूरा पर्पस ही वही था कि बिजनेसमैन जो लोग धंधा कर रहे हैं उनको सब जगह से घेर लो, पीस लो. वैसे एनवायरनमेंट में कंट्री में कभी बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकता है. बिजनेसमैन कैन नॉट फ्लरिश. बिजनेसमैन फ्लरिश नहीं होंगे, कंट्री का इकोनॉमी, लेबर क्लास कोई फ्लरिश नहीं कर सकता है. सो देयर वाज अ नीड टू एनेक्ट द कॉम्पिटिशन एक्ट. तो जो लेजिस्लेचर को पता है पुराने एक्ट में बहुत सारी ये डिफेक्ट्स छूट गई थी, बेटर है नया एक्ट पास करो, उसको सब रिमूव करो. Similarly, the new Consumer Act has been passed in place of the old one. पुराने कंज्यूमर एक्ट में लिमिट्स जो थी, पैक्यूनरी लिमिट्स, कितने लिमिट तक आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो, कहां तक स्टेट कमीशन में, कहां तक नेशनल कमीशन में. न्यू एक्ट ने काफी कुछ उसमें चेंजेस कर दिए हैं, लिमिट्स बढ़ा दी है. डिस्ट्रिक्ट के पास पहले 10 लाख तक की मैटर ही जाती थी, 10 से 1 करोड़ का मैटर, सॉरी 20 लाख तक की, 20 से 1 करोड़ का मैटर स्टेट कमीशन के पास, 1 करोड़ से ऊपर वाले मैटर नेशनल कमीशन के पास. अभी डिस्ट्रिक्ट का ही लिमिट बढ़ा के 1 CR कर दिया है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 86 से लेके 2020 34 इयर्स में मनी का डिवैल्यूएशन अच्छा खासा हो चुका है. 10 lakh or 20 lakh was a huge sum in 86. It is no longer a huge sum. बेटर है वो सब नेशनल कमीशन की जगह पे डिस्ट्रिक्ट में ही डाल दो. नो लॉन्गर इट इज अ डिस्ट्रिक्ट फोरम, इट इज नाउ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ओनली. तो वो सब चीजें क्या है कर दी गई है, पुराने एक्ट की एम्बिग्यूटीज नए एक्ट में करेक्ट की गई है. Now, in case of interpretation of consolidating statutes, repealed act and new act are treated as pari materia. See, consolidating statutes जब रिपील हुई है, तो जो न्यू एक्ट है वो मतलब वो जो पुराने एक्ट जिसको कंसोलिडेट किया गया है और जो एक नया एक्ट बना, दोस विल बी ट्रीटेड एज पारी मटेरियल. जीएसटी, जितने भी इंडायरेक्ट टैक्सेस थे कंट्री में, सेल्स टैक्स, वेट, ये वो, एक्साइज ड्यूटी और सब आपको कंपाइल करके एक जीएसटी बनाए. जीएसटी के इंटरप्रिटेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो यू कैन रिफर अपॉन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ ईदर द सेल्स एक्ट, वेट एक्सेट्रा. समझा? सो दीज वुड बी कंसिडर्ड एज पारी मटेरियल. Now, judicial decisions given under the earlier act are applicable to the identical provisions in the repealing act. Companies Act, पुराना एक्ट, नया एक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है, सेक्शंस है, वर्ड टू वर्ड सेम है. पुराने एक्ट 56 के एक्ट में और 2013 के एक्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. फॉर एग्जांपल, प्रोविजंस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइम में रिडीम होनी चाहिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड का क्या होना चाहिए, एंड ऑल दैट. Most of the provisions are same. You want to interpret the new act, you of course will refer to the old act. या तो procedure for amending the articles of association absolutely same है, कोई इसमें फर्क ही नहीं है. You can refer the old act. Now, as per section 8 CJJ of the General Clauses Act, if any act repeals and re-annexes any provision of an earlier act, reference to repealed provisions shall be considered as reference to the provisions re-annexed. जनरल क्लॉजेस एक्ट भी वही बोलता है, किसी एक्ट ने रिपील किया है पुराने एक्ट को, तो जो जो प्रोविजन रिपील हो चुके हैं नए री एनेक्टेड प्रोविजन से, सो उसको आप इफेक्ट सेम दे सकते हो सिमिलर मैनर में ही. री एनेक्टेड एक्ट है, उसका इंटरप्रिटेशन कहां से लाओगे, जो रिपील वाला एक्ट है उसी से. जो कंपनीज एक्ट का मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया दैट वे.
A presumption exists in case of statutes which are repealed and re-enacted in substantially the same form. But ये presumption कभी एग्जिस्ट करेगा जब वो दोनों प्रोविजन सेम मैनर में जा रहे हैं ना, सब्सटेंशियली तभी जाएंगे. फॉर एग्जांपल डिपॉजिट एक्सेप्टेंस की प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में. कंपनीज एक्ट का पुराना जो सेक्शन 58 था और अभी के जो डिपॉजिट एक्सेप्टेंस वाले प्रोविजन है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है. यू कांट टेक देम एज पारिटी. सिमिलरली लोन टू डायरेक्टर्स वगैरह जो प्रोविजन पुराने एक्ट में थे और नए एक्ट में इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं, यू कांट रीड देम इन पारी मटीरिया. So when you want to read repealed provisions and re-enacted provisions in pari materia, they have to be substantially the same. The presumption is that the judicial decisions given under the repealed act were well within the knowledge of the legislature and as such same interpretation can be used. Provision same है, language same है, like alteration of articles. पहले वाला एक्ट भी वही बोलता था, अभी वाला एक्ट भी वही बोलता है. Clauses of memorandum, 6 clause होते हैं memorandum के अंदर. पहले वाला एक भी वही 6 क्लॉज बोला था, अभी वाला एक भी मानो कि वही 6 क्लॉज बोला है. ऑब्जेक्ट क्लॉज में देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, बाकी के 5 क्लॉज से एकदम वर्ड टू वर्ड सेम है. ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी बहुत बड़ा ज्यादा फर्क नहीं है. इट मींस लेजिस्लेचर को पता था पहले क्या था. नए वाले एक्ट में भी सेम ही रखा है. इट मींस दे डोंट वांट टू चेंज द फॉर्म, सो ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट. ओल्ड वाला एमओए का मानो कि कोई भी कोर्ट का डिसीजन है, यू कैन अप्लाई द सेम डिसीजन इन द न्यू केस आल्सो फॉर द न्यू एक्ट आल्सो. बट कोर्ट के पास पावर रहता है कि इफ इट वांट्स टू ओवरराइड विद द ओल्ड डिसीजन, इट कैन एनी टाइम डू दैट. भले ही एक्ट रिपील ना भी हुआ हो, कोर्ट को लगता है कि पहले वाला डिसीजन गलत था, कोर्ट उसको निकाल सकता है. 377 एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था ये रहेगा. वी कांट रिमूव दिस. इंडियन सोसाइटी इज नॉट एट प्रिपेयर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 377. क्या हुआ 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको निकाल दिया. केशवानंद भारती वाला केस, गोलकनाथ वाला केस, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े साल पहले बोला था नो नो नो, पार्लियामेंट कांट अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स, इट कांट टेक अवे. केशवानंद भारती वाले केस में बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड, कैन टेक द फंडामेंटल राइट्स. कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट की लायबिलिटी वाज अंडर क्वेश्चन. वाज स्टेट हेल्ड लायबल? नो, इट वाज नॉट हेल्ड लायबल. ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्ट्स. विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कोर्ट ने बोला नहीं, स्टेट इज वेरी मच लायबल. तो ऐसे हो सकता है. ओवरराइड करना है पुराने डिसीजंस को तो स्टेट कैन एनी टाइम डू दैट. एंड नाउ द लास्ट पार्ट विल बी डूइंग दी केस लॉज. स्टेट ऑफ असम वर्सेस पी बरुआ. In this case, the Supreme Court held that Income Tax Act 1922 and Assam Agricultural Income Tax Act 1939 are in pari materia because they are dealing with the same subject act. एक है central act, एक है state act. Hence, help could be taken from Section 22 of the Income Tax Act to interpret Section 19 of the Assam Act. क्योंकि Section 22 of the Central Act and Section 19 of the Assam जो State Act था, almost similar थे. 19 का इंटरप्रिटेशन क्या लेना है, आप सेंट्रल एक्ट में से ले सकते हो, बिकॉज कोर्ट ने इन दोनों एक्ट को पारी मटीरिया डिक्लेयर किया. जेके स्टील लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट एंड द टैरिफ एक्ट वर इन पारी मटीरिया. As such, one code is formed by the 2 acts. Therefore, both the acts are to be taken together as one system in interpreting and enforcing each other. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला 2 एक्ट है, एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट एंड द टैरिफ एक्ट. ये दोनों एक्ट मिला के एक कोड ही बना देते हैं, मतलब सब्जेक्ट मैटर को खत्म कर देते हैं. इसके बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है कुछ भी चीज देखने के लिए. जब 2 चीजें एक ही सब्जेक्ट मैटर पर डील करते हैं और वो सब्जेक्ट मैटर को खत्म कर रहे हैं, they have to be in pari materia. जैसे मैंने आप लोग को बोला कॉन्टेक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ वर्सेस राधाकृष्णन. In this case, Supreme Court held that the Mussalman Waqf Act 1923 and the Waqf Act 1954, they were not in pari materia. भले ही दोनों के नाम में वकफ एक्ट आता है, बट उन लोग के सब्जेक्ट मैटर काफी अलग है. नाम में सिमिलरिटी है, बट सब्जेक्ट मैटर आर वेरी मच डिफरेंट. यू कांट होल्ड देम एज अ pari materia. So as such, the judicial decision given under the former act, that is Waqf Act 1923 वाला एक्ट में अगर कोर्ट ने कुछ जुडिशियल डिसीजन दिया है, you can't make that applicable on Waqf Act 1954. क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट मैटर बहुत डिफर कर रही है. They are not in pari materia. CISL Limited versus Excels Committee. In this case, it was held that the Industries Development and Regulation Act 1951 and Textile Committees Act were in pari materia because they deal with the textile only. ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे. लेबर लॉ के अंदर भी बहुत सारे एक्ट्स मिलेंगे which would be held to be in the pari materia.
And the last one, Deputy Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi versus KT Kausalram. यहाँ पे it was held that the Indian Tariff Act and the Imports and Export Control Act 1947, they were in the pari materia and they form the part of the same system. So basically it's up to the court कौन से दो act को लेके court को लगता है कि they deal with the same subject matter. If they are in pari materia, you can take help of one to interpret the another. You can take help of the decision given by the court under one act to arrive at the decision under another act. Okay guys, this was all about our external aids. Thank you. We are done with this series of the external aid, and chapter 2 we are done with. In the next lecture onwards, we will be doing the next topic, next chapter, which would be the rules of interpretation. Do not forget to visit our website www.nklawclasses.com to refer our various courses, and do not forget to subscribe to our YouTube channel NK Law Classes Mumbai. Thank you guys.